Hello students, today in this video we are going to learn a very new topic, but before going on to that topic directly, I want to discuss something with you. There are many situations in physics where we have to deal area not only as a scalar but as a vector. तो नक्शल में क्या बताऊंगा मैं यहाँ पे कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं फिजिक्स में जहां पे एरिया को एज ए वेक्टर लेना पड़ता है क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. टू स्टेट एन एग्जांपल, आई वुड यूज अ बॉटल हियर, राइट? Assume that water is filled in this bottle, and if I tilt it, the water will start coming out of its mouth. Now the more I tilt the bottle, the more water will be coming out of the bottle mouth, right? It means the orientation. Now how much water will come out of that bottle, that purely depends on how much water is present inside, number one. Number two, how broad the mouth of the bottle is, and number three, how do I place this bottle. If I change the orientation of this bottle, the amount of water coming out of this mouth will be different. So in this case I can say that the mouth has an area that of course matters, but along with the area of this mouth, the placing or the orientation of this mouth also matters. Now by orientation I mean angle here. मैं इसको किस एंगल पे रखता हूं. तो हम अब से फिजिक्स के अंदर पहली बार सीखेंगे कि एरिया जो है उसको एज ए वेक्टर भी ट्रीट किया जा सकता है. वी कॉल इट एरिया वेक्टर, राइट? नाउ what a vector is equal to, a vector is always equal to magnitude and its direction. So if I wish to express the area as a vector, let me assume that the area of this mouth is ds vector, right? This ds vector will be equal to magnitude, that is ds, and I need a direction here. Okay, who will give the direction? Always the direction tellers. कौन होते हैं डायरेक्शन टेलर्स? वो होते हैं हमारे यूनिट वेक्टर्स. तो यहां पे हम एक यूनिट वेक्टर लेंगे n कैप, जो इस एरिया वेक्टर की क्या बताएगा, डायरेक्शन. See carefully, the ds means the magnitude of the area. इस पे पाई आर स्क्वायर लगा दें अगर ये थोड़ा सा रेडियस पता हो, और इसकी डायरेक्शन कौन देगा, एक यूनिट वेक्टर. नाउ who is this unit vector? How do we place it? This unit vector is always perpendicular to the plane of the area. For example, this is the plane of the bottle mouth. अब ये जो पेंसिल है, अगर ये मैं इसको एज ए डायरेक्शन टेलर यानी कि यूनिट वेक्टर की तरह यूज करूं तो इसकी डायरेक्शन इधर को होगी. अब जैसे जैसे मैं बॉटल टिल्ट करता जाऊंगा, सी द डायरेक्शन ऑफ द एंड कैप मींस दिस पेंसिल गोज ऑन चेंजिंग. तो ये इस एरिया की क्या बताता जाएगा, ओरिएंटेशन बताता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ओरिएंटेशन चेंज होगी ये एन कैप भी अपनी डायरेक्शन बदलता जाएगा. सो दिस एन कैप helps you to tell the orientation of this area vector, right? I guess it is quite easy. क्या बताया मैंने आपको, बहुत सारी सिचुएशन है फिजिक्स में जहां पे एरिया को स्केलर नहीं एज ए वेक्टर ट्रीट करना पड़ता है. एग्जांपल क्या ली, इस बॉटल से पानी बाहर आने की एग्जांपल ली. इसमें काफी सारा पानी भरा हुआ है, तो इससे जब पानी बाहर आएगा, पानी कितनी स्पीड से बाहर आएगा या कितना अमाउंट ऑफ वाटर बाहर आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स. नंबर वन, हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट. नंबर टू, how wide this mouth is. Third, how I am keeping this mouth. If I am tilting it more, there will be more water flux coming out of this mouth. अब इसका मतलब यहाँ पे इसके एरिया के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी मैटर करती है. सो आई कॉल इट एरिया वेक्टर. एनी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, the magnitude of this area will be given by pi r square because the shape is circular. Now the direction of this area vector is given by a unit vector. This unit vector is totally perpendicular to the plane of the mouth. इस माउथ के बिल्कुल क्या है, ये परपेंडिकुलर. तो जैसे जैसे बॉटल सीधी होती जाएगी ये एन कैप की डायरेक्शन भी हो जाएगी चेंज.
जैसे जैसे ये टिल्ट करता जाएगा वो एन कैप की डायरेक्शन भी बदलती जाएगी। सो द डायरेक्शन ऑफ एन कैप गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अभी मैंने ये बात इस स्टेज पे आके क्यों बताई, ऑफ कोर्स मुझे इसकी आगे जरूरत होगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिफाइन टोटली न्यू क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स? वैसे तो दो तीन तरह की डेफिनेशन बन सकती है। एक बेसिक डेफिनेशन बता दूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया kept in इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पे प्रेजेंट, आपने उस फील्ड के अंदर एक सरफेस रख दी, उस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इसका जो मेजर है वो हमें कौन देता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज नॉट गुड टू से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, बट इट इज ऑलवेज गुड टू से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय, कैसे देते हैं इसको? proportional to electric field strength times area held normal to direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो पहली लाइन में हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताती क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताती है कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, आपने उसमें कोई सरफेस रखी, उस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी उसका मेजर, नॉट इज इक्वल टू, उसका मेजर, उसकी जो कहेंगे हम काउंटिंग एक तरह से, वो हमें कौन दे सकता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे सकता है। तो किसके प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, और उसमें जो हमने एरिया रखा है वो कितना है, और वो एरिया रखा कैसे है? नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चीज को, इस कॉम्प्लेक्स सी चीज को समझाने के लिए मैं कुछ सिंपल से प्रॉप यूज करूंगा। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है जिससे हवा इस तरफ आ रही है। सो यू कैन से द एयर फ्लक्स इज कमिंग इन दिस वे, इस तरह से। लुक एट द मोशन ऑफ माई हैंड। अब एयर फ्लक्स को बाद में रिप्लेस कर देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ, नॉट एन इश्यू। चलो, मेरे पास ये एक सरफेस है, दिस सरफेस। नाउ आई कीप दिस सरफेस इन द एयर फ्लक्स। कैसे भी रख सकता हूं ऐसे। अब एयर फ्लक्स अगर ऐसे आ रही है तो दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द एयर फ्लक्स। मैं चाहूं तो इसको थोड़ा टिल्ट करके भी रख सकता हूं। मैं सिंपली समझा देता हूं। अब सपोज करो कि मैंने पहले सीधा रखा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो एयर फ्लक्स है वो ऐसे आ रही होंगी। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। अब आप कहोगे कि सर इसके थ्रू कैसे पास होगी एयर, ये तो रोक लेगा उसको, एज एन ऑब्स्टेकल है। चलो, अब मैं बोलता हूं कि मेरे इस तरफ कोई चार्ज पड़ा है, राइट। चार्ज से क्या आ रही होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब एयर एक मैटर है, मैटर कैन नॉट क्रॉस दिस सरफेस, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एक इमेजिनेशन है, लाइंस हैं दैट कैन पास थ्रू दिस, ठीक है। ये सरफेस से क्या कर सकती हैं? पास कर सकती हैं। तो उसमें मत जाना कि इसमें से क्रॉस हो सकता है, इसमें से नहीं। मान लो कि इसमें से क्रॉस हो सकती है एयर, ठीक है। तो इसमें से कितनी एयर बाहर आ रही है ये किस पे डिपेंड करेगा? एक तो एयर की अमाउंट कितनी ज्यादा है, हाउ मच एयर इज फ्लोइंग, या स्पीड ऑफ एयर कह दो यहाँ पे। दूसरा, ये जो मैंने एरिया चूज किया है ये कितना है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तीसरा, किस बात पे डिपेंड करेगा कि मैं इस सरफेस को उस सोर्स के सामने रख कैसे रहूं। अगर तो मैं ऐसे रख रहा हूं तो मैक्सिमम एयर इसमें से निकल के आएगी। अब जैसे जैसे मैं इसको टिल्ट करता जाऊंगा इन दैट वे और इन दैट वे, तो द एयर कमिंग आउट दिस सरफेस और द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ऊपर कोई चार्ज पड़ा है, थ्रू दिस सरफेस विल डिक्रीज। तो इसका मतलब इस एरिया की ओरिएंटेशन मैटर करती है। ओरिएंटेशन बताने के लिए क्या ले लेंगे? इसका एक एन कैप ले लेंगे, ठीक है। अब बात समझ में आई। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं थोड़ा ट्रू कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करता हूँ? मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट।
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं ये एरिया रख दूं एंड आई वांट टू सी कि इसमें से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ पे, इट इज E. नाउ आई वांट टू सी हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास थ्रू दिस सरफेस. पूरी सरफेस के साथ काम करने की बजाय पहले मैं इस सरफेस का इस सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा लेके चलता हूं. लेट मी टेक आउट दिस पोर्शन ऑफ दिस एरिया. इस एरिया की वैल्यू कितनी है, कितना मैग्नीट्यूड है, ds, और इसकी डायरेक्शन कौन देगा, n कैप. सो लेट मी टेक दैट आउट. अरे भाई, अब ये जो एरिया है इसको मैं रखता हूं फील्ड में. इसके थ्रू कितनी लाइंस पास कर रही हैं, उससे जो मेरे पास स्मॉल नंबर ऑफ फ्लक्स आएगा. फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई के साथ. इवन आई विल से कि आप एक सबस्क्रिप्ट यूज कर लेना E, क्योंकि आगे जाके मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे सिंबल उसका फाई रहेगा, लेकिन सबस्क्रिप्ट में B यूज कर लूंगा. राइट, तो ये किसके इक्वल होने वाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था. राइट, दूसरा इस सरफेस का एक छोटे से पोर्शन का एरिया कितना था, दैट इज लेट्स से डेल्टा S. छोटा सा है ना, तो मैंने इसका एरिया कितना ले लिया, डेल्टा S ले लिया. अच्छा, तीसरी चीज क्या मैटर करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर की डायरेक्शन और इसका जो यूनिट वेक्टर था उसकी डायरेक्शन के बीच में कॉस ऑफ एंगल कितना है. देखो बेटा, अगर तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली रख दूंगा नॉर्मल फील्ड लाइन के, तब तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका जो एन कैप है वो भी उधर को, ई वेक्टर भी उधर को. मींस आई कैन से दैट, अगर मैं इसको कैसे रखता हूं, अगर मैं इसको लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, ऐसे रखता हूं, तो इसका जो एन कैप होगा वो सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर. इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है. तो यहां पे आप देख सकते हो कि ई वेक्टर और एन कैप दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं. पैरेलल हैं तो एंगल कितना हो गया, 0. तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1. फिर तो आपका फ्लक्स आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू एरिया सिंपली. पर जरूरी थोड़ी है कि हर बार ये ऐसे नॉर्मल रखा हो. अब इमेजिन करो कि ये नॉर्मल नहीं पड़ा, इट इज एट सर्टेन एंगल. ये ऐसे ना रख के बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऐसे ना रख के इसको टिल्ट कर दिया. फिर जब ये टिल्ट होगा तो इसका एन कैप भी टिल्ट होगा. मींस आई एम सेइंग दैट कि अब ये जो एरिया यहाँ पे आपने रखा है, ये जो सरफेस रखी है, इट इज नॉट नॉर्मल, रादर ये आपने जो सरफेस रखी है इट इज लाइंग लाइक दिस. फिर आप क्या करोगे, फिर तो इसका जो एन कैप है वो तो आपका इस तरफ जाएगा, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा एन कैप. और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, सीधा. तो आप कह सकते हो ना कि यहाँ पे एक एंगल आ गया, दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया, थीटा एंगल आ गया. तो अगर इनके बीच में थीटा एंगल आ गया तो आपके लिए कौन सा कंपोनेंट काम का है, आपके लिए तो इस एरिया वेक्टर का सिर्फ वही कंपोनेंट काम का है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. आपके लिए तो यही काम का है ना. तो इस एन कैप को जब आप बाइफरकेट करोगे, इसको रिजॉल्व करोगे, तो अलोंग द डायरेक्शन इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा. तो मैंने यहाँ पे आपको इसका एक सिंपल लॉजिक दे दिया, ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला दे दिया. क्या होता है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एरिया. देखो, अब मैं ये अगर ब्रैकेट हटा के यहाँ पे रख दूं तो डेल्टा एस कॉस थीटा इस बात को इंश्योर करेगा कि आप एरिया का हमेशा कौन सा कंपोनेंट ले रहे हो, आप एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट ही लेके चल रहे हो. अगर तो वो पूरे का पूरा नॉर्मल रखा है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर उसको किसी एंगल पे रख दिया तो फिर भी आप इसका कौन सा कंपोनेंट लेके चलोगे, सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट लेके चलोगे. कॉस थीटा इंश्योर्स दैट, राइट. तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे रखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज यू नो दैट द cos थीटा गिव्स यू द डॉट प्रोडक्ट. तो ये कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट ds वेक्टर. वर्क की डेफिनेशन याद आ गई होगी आपको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, लेकिन वर्क खुद क्या रहता था, स्केलर. तो यहां से एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि ये जो यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी.
अच्छा, अब मैं बताने जा रहा हूं, अब तुम कहोगे कि सर रखी तो सरफेस आपने पूरी थी, लेकिन आपने एलिमेंट कौन सा लिया था, वो सिर्फ छोटा सा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस पूरे कार्डबोर्ड में से, पूरी सरफेस में से ऐसी छोटी छोटी डेल्टा एस निकाल लूं, तो मुझे टोटल फ्लक्स देने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स, ऐसे सभी ई डॉट डी एस का क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समेशन। अच्छा, समेशन के बाद अगर मैं देखूं कि ये जो मैंने टुकड़े बनाए हैं, इसमें से छोटे छोटे जो एरिया पीसेस काटे हैं, अगर मैं इनको काट लूं तो मेरे पास कोई काउंटिंग आएगी। लेट्स से इतने साइज के काट लूं, मेरे पास आए 10 पीसेस। अब मैं 20 पीसेस काटना चाहूं तो क्या होगा, इस पोर्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। एज द नंबर ऑफ कटिंग्स इंक्रीजेस द एरिया ऑफ ईच कटिंग डिक्रीजेस। इमेजिन कर लो कि आपने इनफाइनाइट पीस काट लिए, नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स आपने कितने ले लिए, इनफाइनाइट। तो हर एक पीस का जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली नहीं, अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, 0। एज द नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट इंक्रीजेस द एरिया ऑफ ईच एलिमेंट डिक्रीजेस। तो उस केस में आपकी समेशन किस में चेंज हो जाती है, द समेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन। समेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ई डॉट डी एस विद इंटीग्रेशन। फिर आप ये सोचोगे कि मैंने इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर ये क्लोज्ड क्या डाला, ये एक सर्कल सा क्या डाला। ये इंश्योर करता है कि आपने सरफेस जो ली है, ये कौन सी सरफेस है, दिस इज क्लोज्ड सरफेस, राइट। बात समझ में आ गई, इसका मतलब क्या है, क्लोज सरफेस। थोड़ा आगे समझ आ जाएगा ये क्लोज ओपन का, राइट। तो फटाफट से एक बार समाप्त कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया kept in electric field which is proportional to electric field strength times the area held normal to the direction of electric field। मतलब आपको सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लेके चलना है, एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट ही लेके चलना है। अगर तो आपने सीधा रख दिया फिर तो ये cos थीटा खत्म ही हो जाएगा, cos 0 1। लेकिन अगर आपने ये टिल्टेड रख दिया तो फिर आपको उसका नॉर्मल कंपोनेंट लेना। नॉर्मल कंपोनेंट मतलब कौन सा कंपोनेंट, cos कंपोनेंट, राइट। तो फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट, यहाँ पे डेल्टा ही कर सकते हैं डी की बजाय, क्योंकि सब जगह हम, अच्छा इसमें कोई फर्क नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा की बजाय डीज ले लेता तो ये एक्सप्रेशन वैसे ही चलता। यू कैन यूज डेल्टा और डी, दोनों का मतलब ही चेंज को डिनोट करना होता है। अच्छा, उसके बाद टोटल फ्लक्स निकालनी थी। फिर क्या किया, सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रही थी उन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने का मतलब क्या कर दिया, समेशन। अभी अगर मैं उन एरिया एलिमेंट्स की गिनती बढ़ा दूं तो उनका एरिया क्या होता जाएगा, कम। उसी कार्डबोर्ड साइज में से अगर आपको 10 पीस काटने हैं तो बड़े मिलेंगे, उसी कार्डबोर्ड साइज में से अगर आपको 20 पीस काटने पड़े तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है, आपने इतने ज्यादा पीसेस काट लिए कि उसका एरिया बहुत छोटा हो गया। अगर आप इनफाइनाइट पीसेस काटने की कोशिश करो तो हर एक पीस का एरिया अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इस समेशन को किस में बदला जा सकता है, इंटीग्रेशन में, और यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस लेके चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कौन सी क्वांटिटी है, नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी, नंबर 2 यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट यू कैन राइट। अच्छा, फिर हमें एक चीज और याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और थी न्यूटन पर कूलम की बजाय, वोल्ट पर मीटर। अगर मैं यहाँ पे वोल्ट पर मीटर लिखूं और यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखूं तो -1 और 2 की पावर, देखो रफ में देख लो पहले, वोल्ट पर मीटर साथ में एरिया क्या आ गई, मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करूं तो क्या बनता है, वोल्ट मीटर। बेटा बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे ये वोल्ट मीटर यूनिट किसकी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जबकि वोल्ट पर मीटर किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मिक्स मत कर जाना, एक वोल्ट मीटर डिवाइस भी होता है जो पोटेंशियल मेजर करने के काम होता है। बी वेरी केयरफुल। तीसरा,
आप इसकी अगर यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, दिस मे बी आस्क्ड समटाइम्स इन एग्जाम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस इनटू एरिया की डायमेंशंस, इफ आई गो इनटू मेकिंग दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन कैसे बनाओगे, देखो इधर बनाते हैं, चलो भूल गए होगे थोड़ा सा, इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या बनेगा, क्या किसकी यूनिट्स बनानी है, फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, कॉस थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू एरिया। अब बना दो, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml/t-2, एरिया की क्या होती है, l², चार्ज इज नॉट बेसिक, इसकी क्या होती है, at। कहां से, 10th स्टैंडर्ड से, करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज यहां से क्या आ जाता है, करंट इनटू टाइम, करंट एम्पियर टाइम t, तो बन गई at। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, क्या बनेगा, m l की पावर 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, क्या बन गया 3, t की पावर 2 -2 यहाँ पे, नीचे से t ऊपर आएगा तो क्या बनेगी -3, a ऊपर आएगा तो -2। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका बन गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सो दीज माइन्यूट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा सकता है, राइट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल नहीं उलझना आपको, सिंपली एक बार मैं सम अप कर देता हूं फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके लिए, और एक प्रॉब्लम करवा देता हूं इसकी, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया कैप्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई डेफिनेशन। नंबर 2, फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ए लिख दो, एस लिख दो, व्हाटएवर। अगर कोई आपके पास कॉन्टिन्यूस सरफेस है जिसमें आपने स्मॉल पोर्शंस में तोड़ा हुआ है, तो यही फिर आपका क्या हो जाएगा, E डॉट डी ए और डी एस, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो यहाँ, ठीक है, और क्लोज सरफेस आइडिया, बी केयरफुल। तीसरा, इसके बारे में 3 चीजें हो गई, डेफिनेशन समझ में आ गई, दोनों टाइप के फॉर्मूलाज पता लग गए। इफ आई गो इनटू डिटेल, ये होता है E A cos थीटा, यू नीड नॉट टू वरी, यहाँ भी अगर लिखना चाहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, E D A क्या आ जाएगा, cos थीटा। सो डोंट वरी, डॉट प्रोडक्ट आपको आती है +1 में सीखा। यूनिट इसकी क्या बनेगी, या तो बनेगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या बनेगी वोल्ट मीटर, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी है, ये है सर स्केलर क्वांटिटी, भूले से भी मत इसको वेक्टर लिख देना, एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट चीज हमने बनाया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ml/t-3 क्या आ गया, a-1। तो ये चीजें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं यहाँ पे, so that the topic gets clear. Let me read out the statement for you. A circular sheet, एक सर्कुलर शीट है, ब्रीफ में लिखूंगा मैं इसको, इसका रेडियस कितना गिवन है हमें, रेडियस गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, राइट। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, राइट। मेकिंग एन एंगल, कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। इसका मतलब नॉर्मली रखा गया, टिल्टेड रखा गया उसको, किसके साथ, विद द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द शीट, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो थ्रू द शीट कितनी है, ठीक है। अब डायग्राम तो आपके दिमाग में है, क्या फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, E A cos ऑफ थीटा। अच्छा, E यहाँ पे एरिया क्या होगा, एरिया अलग से फाइंड आउट कर लो, πr² होगा, क्यों, शीट कौन सी है, सर्कुलर, ठीक है, पाई। यहाँ पे r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर्स है, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, सो 10 × 10⁻⁴ सेंटी के लिए क्या आता है, -2, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। 10 × 10⁻1 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा, -2 की बजाय, और उसका क्या है, स्क्वायर। तो ये बन गया पाई × 10⁻⁻2 बन जाएगा, राइट, समझ में आ गया। तो इस एरिया को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाकी सब चीजें तो ऐसा ही सिस्टम में है। तो यहाँ पे बनेगा 5 ×
10⁵ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एरिया की वैल्यू पाई इंटू 10⁻² इंटू किसकी वैल्यू यहाँ पे cos 60 की वैल्यू। सब चीजें सब्स्टिट्यूट कर दो, 5 और पाई इकट्ठा हो गया, 10⁵ इंटू 10⁻², ये बन गया 10⁻3। cos 60 की वैल्यू कितनी बनेगी, ये बनेगी 1/2। अब अगर इसको आप सॉल्व करो तो कैसे कर सकते हैं इसको, बहुत तरीके हैं। पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, यू कैन डू इन दैट वे। अच्छा तो मैं यहीं पे कर दूं इसको, 5 इंटू अगर मैं 3.14 यूज कर लूं तो 2 के टेबल पे कैंसिल करके इसको आएगा 1.5 और यहाँ पे बन जाएगा 7। तो 1.57 को जब आप 5 से करोगे मल्टीप्लाई तो इसको सॉल्व करो, 35 यहाँ पे बनेगा 25 + 3 28, 2 5 1 5 और 2 7.85 इंटू 10⁻³ यहाँ पे या तो लिख दो न्यूटन पर कूलम मीटर्स पर और आप लिख सकते हो वोल्ट पर मीटर। तो इतनी सिंपल प्रॉब्लम्स है, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे जो है प्रॉब्लम्स को और इजीली सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल एक नई थ्योरम इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। यस यू आर राइट, अगर आपने गेस कर लिया है। एक प्रॉब्लम की थी हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली, और उस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसके पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था और स्टेटमेंट में एक नाम था, आ गया यार, द नेम वाज गॉस लॉ। अब हम यहाँ पे गॉस थ्योरम, गॉस लॉ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ध्यान से सीखना उस चीज को, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या इंट्रोड्यूस करने वाला हूं मैं यहाँ पे, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट सीख लो पहले इसकी, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में से अगर कोई टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर डायपोल्स तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स और गॉस थ्योरम है। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स में से न्यूमेरिकल आप डैम श्योर मान के चलो कि आता ही आता है, और गॉस थ्योरम की आगे जो 3 एप्लीकेशंस हैं उनमें से फेमसली वन ऑफ द एप्लीकेशन या तो आपको 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में डेफिनेटली मिलेगी। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी, गॉस थ्योरम की, द स्टेटमेंट इज द फ्लक्स coming out of a closed surface is 1/epsilon times, या 1 of the, मैं यहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखता, मैं यहां पे परमिटिविटी लिख देता हूं, परमिटिविटी टाइम्स the charge contained in the inside the surface या contained by the surface। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कोई क्लोज्ड, ओके लेट मी बी वेरी पर्टिकुलर हेयर, जो वहां पे फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था इससे पहले जो किया वो ओपन और क्लोज दोनों सरफेसेस के लिए लगेगा, जो फाई का फॉर्मूला इससे पहले किया था। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ किन सरफेसेस के ऊपर अप्लाई होगी, क्लोज्ड सरफेसेस के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है, कंटेन्ड बाय द क्लोज सरफेस। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, गॉस थ्योरम कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस होंगी, ठीक है, वो किसके बराबर होंगी, 1/परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है यहाँ पे, वही अपना एप्सिलॉन। अब यहाँ पे अज्यूम कर लो आइडियल सिचुएशन के वैक्यूम या एयर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कंटेन, क्या कंटेन, नेट चार्ज, ठीक है। थोड़ा इसके आगे चलेंगे फिर आपको ये नेट चार्ज का कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा जो पुराना कॉन्सेप्ट था उसके अंदर भी हमें पता है कि ये और किसके बराबर होता था, E.ds के। तो आप ये तीनों चीजें अभी इक्वल मान के चलो, ठीक है। ये इतना सा गॉस थ्योरम से है हमारे पास, 1/परमिटिविटी टाइम्स द चार्ज कंटेन्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, राइट। अब सपोज करो कि एग्जाम में इसका हमें क्या आ जाता है, प्रूफ आ जाता है।
तो इसके प्रूफ को मैं बहुत ही सिंपल वे से करूंगा। मैं एक अच्छा दूसरी चीज पहले ये बता दूं मैं आपको कि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको एक सरफेस चाहिए होती है, इसको बोलते हैं हम गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होती है? एक तरह की इमेजिनरी सरफेस होती है जो कि चार्ज को क्या करती है, या चार्ज सिमेट्री को जो भी वहां पे प्रेजेंट होता है चार्ज एनक्लोज करती है, राइट। और क्योंकि ये इमेजिनरी है तो आप चाहे सरफेस को छोटा ड्रॉ करो चाहे बड़ा ड्रॉ करो, जो आपकी फ्लक्स हैं उनके ऊपर इस चीज का प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि अगर गॉसियन सरफेस को बड़ा कर दें तो फ्लक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, गॉसियन सरफेस को छोटा कर दें तो फ्लक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। मैं लिख देता हूं डजंट, क्या लिख देता हूं, साइज ऑफ गॉसियन सरफेस does not affect the number of affect the electric flux, right। चलो इसके बाद और क्या सीख लें हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस के लिए कि इसकी चॉइस क्लेवर होती है। ये इमेजिनरी सरफेस है, ये चार्ज एनक्लोज करनी चाहिए, और जो साइज ऑफ गॉसियन सरफेस है वो हमारे फ्लक्स को अफेक्ट नहीं करता। अब फटाफट से मैं तुम्हें इसका यहाँ पे क्या सिखाता हूं, प्रूफ सिखाता हूं। बहुत ही सिंपल प्रूफ है। सपोज करो कि मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, कितना Q। मुझे फटाफट से बता दो कि इस पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इट विल बी K टाइम्स Q बाय, किस पॉइंट पे देखना चाहता हूं मैं ये देखना चाहता हूं, लेट्स से इस पॉइंट पे देखना चाहता हूं। फ्रॉम O पॉइंट पे मेरा चार्ज पड़ा है, मैं P पॉइंट पे इसका क्या देखना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये P पॉइंट लेट्स से कितनी दूर है, दिस P पॉइंट लेट्स से इज एट R डिस्टेंस। तो मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, KQ बाय R स्क्वायर, वेरी सिंपली। अच्छा अब मुझे निकालनी है फ्लक्स, तो मुझे इस Q चार्ज को क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज करना पड़ेगा। किसके अंदर एनक्लोज करूं, एक सरफेस चूज कर लेता हूं। अब इसकी सरफेस में क्लेवर चॉइस कैसी है, एक पॉइंट चार्ज है, लेट्स से दिस चॉक इज पॉइंट चार्ज। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी, मेरी तरफ भी, इधर भी, सभी दिशाओं में। ये ऐसे जैसे एक बल्ब से लाइट सभी डायरेक्शंस में बाहर निकलती है, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन। उसी तरह इस चार्ज से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सभी डायरेक्शंस में निकल रही है। तो इस पूरे फ्लक्स को एनक्लोज करने के लिए आप कैसी सरफेस चूज करोगे, मेरे हाथ की शेप से इमेजिन कर लो। हम स्फेरिकल सरफेस चूज करेंगे। अब यहाँ पे तो उसको 2D में अगर मैं बनाऊं तो मैं ऐसे सर्कल ही दिखा सकता हूँ आपको। ये कमी है हमारे मतलब उस सिस्टम की कि इसको जब 2 डायमेंशन पे ड्रॉ करेंगे तो वो हमें एज ए सर्कल ही क्या है दिखाई देगा। यू कैन अज्यूम दैट कि ये एक बॉल है मेरे पास, स्फेरिकल बॉल है, यू कैन सी इसके सेंटर पे, क्योंकि सफियर है इसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा ना, और उसके सेंटर पे, इस बॉल के सेंटर पे क्या पड़ा है, चार्ज पड़ा है। तो ये जो बॉल की सरफेस है, दिस सरफेस which I'm touching now, this represents the Gaussian surface। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। अब मैं क्या करता हूं कि इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं, लेट मी मार्क दैट, बिल्कुल प्रैक्टिकली सीख के चलेंगे चीजें। इस गॉसियन सरफेस का मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, पहले इतने से हिस्से के लिए फ्लक्स निकालूंगा। अब इस हिस्से का, ये जो यहाँ पे मैंने शेड किया है, इस हिस्से का जो एरिया है, लेट्स से कि वो कितना है, लेट्स से दैट एरिया इज ds। अगर ये एरिया ds है तो इसमें से कितनी फ्लक्स बाहर आएगी। देखो सेंटर पे चार्ज पड़ा है और ये सरफेस उससे कितनी दूर है, रेडियस r दूर है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बाहर आएगा, ऐसे परपेंडिकुलरली बाहर आएगा। इस छोटी सी सरफेस का अगर मैं यूनिट वेक्टर लूं n कैप, वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं कि इस डायरेक्शन में, ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, दिस इज माई
स्मॉल गॉसियन सरफेस, सारी गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा लिया, इस डायरेक्शन में इसका ई वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में इसका क्या है, एन कैप है। तो मुझे अगर यहाँ पे फ्लक्स डिफाइन करनी हो तो वो क्या होंगी, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज्ड इंटीग्रल ही लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डॉट एरिया वेक्टर ऑफ दैट स्मॉल पोर्शन, ये जो छोटा सा गॉसियन सरफेस है, एरिया एलिमेंट है, इसका एरिया वेक्टर। अच्छा, अभी इसको जरा ओपन करूं तो क्या बनेगा, EDS cos ऑफ थीटा। नाउ थीटा इज द एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड DS वेक्टर। DS वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन दे रहा है यहाँ पे, एन कैप। अब आप डायग्राम में ध्यान से देखो, E कैप और एन कैप सेम डायरेक्शन में है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, cos 0 हमारे पास कितना होता है, 1, तो मेरे पास सिंपली क्या बचेगा, EDS। अब एक बात समझो, मैं ये गॉसियन सरफेस पूरी बॉल पे कहीं भी बना लूं, ये तो मैंने एक पॉइंट पे बनाई ना, मैं इसको कहीं भी बना लूं, सेंटर से तो ये सरफेस पेरिफेरी उतनी ही दूर है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो एट एवरी पॉइंट ऑन दिस बॉल सरफेस इज सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, एरिया ऑफ दैट स्मॉल पोर्शन। अब ये तो मैंने एक छोटा सा एरिया बनाया था यहाँ पे, इसकी इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि इस पूरे बॉल पे ऐसे सारे एरियाज जो मैं बनाऊंगा, सारे एलिमेंट्स जो सपोज करूंगा इस तरह से, इन सभी एलिमेंट्स का एरिया क्या कर दूं, ऐड कर दूं। अब इनका एरिया हमें सिंपली पता है कि बॉल के सरफेस एरिया के बराबर आएगा टोटल करके, इन सभी सर्कल्स को अगर क्लोजली जोड़े हों तो इन सब का एरिया कितना आएगा, जितना बॉल का एरिया है, बॉल का सरफेस एरिया कितना होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। यू आर राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू K Q बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये ds की इंटीग्रेशन आई है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अच्छा, K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं मान रहा था कि इस खाली जगह में, ये जो मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, इस खाली जगह में एयर थी या वैक्यूम था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इन दोनों के अलावा कुछ और नहीं था, इंटू Q बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। जरा कैंसिल करो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, ये बचा हमारे पास Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आई गेस हमें यही प्रूव करना था, 1/परमिटिविटी टाइम्स द चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, द चार्ज वाज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, राइट। अब ध्यान में रखना, अगर कोई चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर पड़ा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे ले सकते हैं E, पर जो Q लेंगे, अगर आपको गॉसियन, ये गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, Q आप सिर्फ वही लोगे जो सरफेस के अंदर है। इमेजिन करो कि ये गॉसियन सरफेस है, ये 2 चार्ज यहाँ पे पड़े हैं और तीसरा चार्ज बाहर पड़ा है। जब आपने फ्लक्स कैलकुलेट करनी है तो आप इस गॉसियन सरफेस के लिए सिर्फ Q1 और Q2 ही लोगे, Q3 नहीं लोगे। अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ऐड कर दो, नेगेटिव चार्जेस हैं तो भी ऐड कर दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो भी आपके पास नेट रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो चार्ज आता है ये नेट चार्ज होता है कंटेन्ड इनसाइड द सरफेस। होप दिस थ्योरम इज इजी टू अंडरस्टैंड। अभी हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम कूलम्स लॉ इससे डिराइव करने की कोशिश करेंगे ताकि बता सकें कि ये दोनों सिंक में हैं। फिर हम इसके बाद इसकी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर चार्ज नहीं कंटेन्ड है सरफेस के अंदर तो फ्लक्स भी नहीं होगी, भले वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इसको मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।